Good morning, children. So today I am going to tell you that two pictures I am giving you to whom you have to solve them, and you have to compose a story based on these pictures, and you have to send me on Saturday, because among these two pictures one question will come in your half yearly exam. Look at this picture. In this picture there is a pig and there is a lady. She is having a pet. Where, children? आप देखती हैं What's that? इसको नहीं देखा ना? Nobody sees it. मैम आप मुझे बता सकते हैं कौन क्लास टीचर है क्लास में? क्लास टीचर है 6 है, ABC 7 ABC आरती मैडम है, मैं हूँ, और प्रतिज्ञा मैम 6 7th में। अभी नहीं आफ्टर क्लास। हाँ, class, listen to me. In this picture you can see that there is a lady with a pig. She is having a pig as a pet, and someday she had some heart attack. When pig saw the lady had a heart attack, he went outside and he sit before a car. When the car stopped, the pig led him to his house. When the man went inside the house, he saw there is a lady having heart attack. So that how the pig, a pet, helped the lady. So this kind of story you have to make. Okay, I have just given you a little summary of this picture. Okay, next picture you can see. In this picture you can see there is a man who is carrying a goat. Okay, and after that the man who is having the goat, he met with a man. He said something to him. Again he met with a man who said him something, and again the third man again said him something. So what happened later you can understand. This is the story of what? आपने ये वाली स्टोरी सुनी है सब लोगों ने? इसकी कहानी सुनी है कि नहीं? सुनो सबकी, करो अपनी। हिंदी में ये वाली कहानी सुनी है? क्लास साइलेंट, लिसन टू मी। कहानी में थोड़ी सी आप लोग को बता दे रही हूँ, आप लोग घर पे अपने से लिख लेना। एक बार की बात है, एक आदमी रहता है, उसके पास एक बकरी रहती है। वो अपनी बकरी लेकर जाता रहता है। 3 धूर्त उसको मिलते हैं। तीनों दूर सोचते हैं क्यों ना इसकी बकरी क्या की जाए, इससे छीन ली जाए। अब इससे छीनेंगे तो नुकसान हो सकता है, इसलिए उन्होंने उसे एक प्लान सूझा। क्या प्लान सूझा? उन्होंने इसको एक बकरी दिखाई और कहा कि ये बकरी, ये गधा कहाँ ले जा रहे हो सर पे रखकर। पहला वाला आया, उससे ऐसा कहा, उसने कहा क्या बोलते हो भाई साहब, ये तो बकरी है। उसके बाद वो चला जाता, कहता है अरे क्या पागल आदमी है, सर पे गधा लेकर जा रहा है। तो उसके दिमाग में एक डाउट क्रिएट होता है। दूसरा आदमी आता है, वो भी कहता है कि अरे तुमने सर पर गधा कहाँ ले जा रहे हो। तो फिर क्या होता है, फिर उसको लगता है, उसे डाउट होने लगता है। तीसरा आदमी, तीनों दोस्त रहते हैं, तीसरा आदमी आता है, वो भी सेम बात कहता है। जब तीसरी बार वो ये बात सुनता है तो उसे विश्वास हो जाता है कि वो अपने सर पर गधा ले जा रहा है, बल्कि उसे ये बकरी दिख रही है। यहाँ तक कि उसको अपनी आंखों पे भी क्या हो जाता है, धोखा हो जाता है अपनी आंखों से। मतलब कि उसे दूसरों की कही हुई बातों पे ज़्यादा भरोसा हो जाता है, अपनी आंखों पे कम। और फाइनली वो क्या करता है, बकरी को वहाँ पर छोड़कर चला जाता है, और ये तीनों लोग उसकी बकरी को बाद में उठाकर ले जाते हैं।
तो इसलिए इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें दूसरों की बातों पर भरोसा नहीं करना चाहिए, खुद के हाथ और आंखों पर भरोसा करना चाहिए। सुनो सबकी, करो अपनी। इसी कहानी का तुम्हें मोटो बता दिया है। सो यू हैव टू राइट द होल स्टोरी इन योर ओन लैंग्वेज। अंडरस्टूड क्लास? Yes, ma'am. Okay. So this is the homework for today, and another homework I will give based upon the diary entry. So let's start the diary entry. Kindly take out your rub, everyone. Are you able to see the screen? Okay. Can you see the paint screen, class? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Let me start the diary entry. Yes, ma'am. What is diary writing? You know, class, whenever we visit some place, we do something exciting, we do something enthusiastic, we generally keep the photo of those days. Class, now please mute yourself. Nobody is going to speak. It's my request and it's my warning also. Whatever you would like to understand. Class, listen to me. So in diary entry, you know that in diary entry what we write, we keep our memories alive. We keep our memories fresh. It means whenever in the earlier times, children, there was not many good means of keep the photographs, keep the videos of your best memory. So what people did? People made beautiful diaries in which they have written beautiful memories of their life. यहाँ तक कि कुछ लोग तो अपनी दिनचर्या भी डायरी में लिखते हैं। तो डायरी राइटिंग करना ये एक आर्ट है, ये एक कला है। कुछ तो इतनी महान डायरियाँ हुई हैं इस दुनिया में कि उनकी डायरियों पर किताबें लिखी गई हैं। आपको शायद पता होगा कि जवाहरलाल नेहरू ने अपनी पुत्री इंदिरा गांधी के लिए करीबन 9 पत्र लिखे थे। उन 9 पत्रों को एक किताब में संकलित करके उसे पब्लिश किया गया था। तो मतलब इस तरीके से, तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो पत्र हम लिखते थे, पहले ज़माने के लोग जो लोग पत्र लिखा करते थे या डायरी लिखा करते थे, वो पब्लिश हुआ करती थी, उनकी बातें पब्लिश हुआ करती थी। ठीक है, ऐसी डायरी एंट्री आज हम लिखने जा रहे हैं कि डायरी लिखी कैसे जाती है। अगर आपके घर में भी डायरी है तो आप उसे कैसे लिखोगे, उसे कैसे ब्यूटीफाई करोगे। डायरी में लोगों की जानकारी मिलती है। फिल्मों में आपने देखा होगा जब किसी पुरानी जानकारी को प्राप्त करना होता था तो क्या करते थे, फिल्मों में हीरो को कोई डायरी मिलती है, उसे अपना पुराना राज पता चल जाता है। ऐसा फिल्मों में होता है ना, रियलिटी में नहीं होता बच्चों। ठीक है, अब हम रियलिटी के हिसाब से नहीं चलेंगे, हमें क्या करना है वो हम देखेंगे। ओके, सो हाउ वी विल स्टार्ट द डायरी एंट्री। फर्स्ट थिंग आई वुड लाइक टू से, इन द डायरी एंट्री द फॉलोइंग स्टेप्स यू विल हैव टू राइट फॉलो ड्यूरिंग डायरी एंट्री। सो आई एम गोइंग टू मेक a box that will help us. Okay, so what we are going to write? We are going to write a beautiful diary entry. So what should be mentioned? First thing, the date should be mentioned. The first point should be the date. So what is the date today? The date is 10 September 2020. This is the date of today. अगर आप डायरी आज लिखने जा रहे हो तो आज की डेट डालोगे, ठीक है, और आज का दिन, आज आपने डेट डाल दी। इसके बाद नेक्स्ट लाइन, व्हाट इज द डे, आज डे कौन सा है, थर्सडे। लेकिन एक बात बहुत ध्यान से सुन लो, डायरी एंट्री में जो डेट ये लिखा हुआ है, ये डेट आपको एग्जाम में नहीं लिखनी होती, ठीक है। आप एग्जाम में क्या करोगे, डायरेक्ट डेट लिखोगे। इट मींस 10 सितंबर
2020. Okay, let me change the color. Okay, next thing, next in the next line the time is mentioned. अब कितने बजे आप लिख रहे हो, पहला क्या लिखना है आपको, डेट लिखनी है, दूसरा क्या लिखना है आपको, डे लिखना है, और तीसरा आपको क्या लिखना है, टाइम लिखना है। कितने बजे आप ये डायरी लिख रहे हो। मानो हम 7:30 बजे ये डायरी लिख रहे हैं, ठीक है, 7:30 AM. Okay, so what are the three main points? The first point the date, second point the day, and third point the time. Fourth point, you may start writing by dear diary. Okay, then we will write dear diary. In your book it is written that you can leave this you can leave this point, but I recommend you to write this. Okay, सारे बच्चों को मैं ये बोल रही हूँ कि इसको जरूर लिखना, इसके मार्क्स होते हैं। आपकी बुक में भले इसको बोल दिया है कि आप ये छोड़ सकते हो, वो इसलिए बोला है कि आप जरूरी नहीं कि आप कंपोज करते वक्त इसे लिखो ही, लेकिन मैं रेकमेंड करूंगी कि आप लोग इसे जरूर लिखो, ठीक है। डियर डायरी से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट थिंग डेट, सेकंड डे, टाइम, देन डियर डायरी। नाउ वी विल स्टार्ट द ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द इवेंट्स। अब मानो कि आज मैंने एक कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया है, आज मैंने एक कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया है और उस कंपटीशन में मुझे सेकंड प्राइज मिला है, ठीक है, फर्स्ट नहीं सेकंड प्राइज। फिर से सुन लो, फर्स्ट नहीं सेकंड प्राइज मिला है। तो अब मुझे एक तरीके से खुशी भी है लेकिन दुख भी है कि मैं पहला नहीं प्राप्त कर सकी। तो अब मैं अपनी फीलिंग्स को कैसे बताऊं, तो कैसे फीलिंग को स्टार्ट करेंगे हम, टुडे से। टुडे आई वॉज, आई इज क्यों नहीं लगा है बच्चों, आई एम क्यों नहीं लगा है, क्योंकि ये घटना सुबह की है। फिर से सुन लो, ये घटना सुबह की है इसलिए हमने वॉज लगा दिया। अगर ये घटना अभी की हो रही होती तो आई एम लगा देते, भले ही टुडे लिखा है लेकिन सुबह मॉर्निंग की बात हो रही है। टुडे आई वॉज एक्साइटेड इन द मॉर्निंग perform in the sports. Yes. मैम तो जो पहले लिखा डायरी एंट्री ये तो उसमें से वो कौन सा पढ़ना है? फिर से बोलो बेटा, I didn't understand what you said. मैम जो आपने डायरी एंट्री लिखाई है वो वाली याद करनी है कि जो पहले वाली बात करते हो, जो पहले मैंने लिखाई है उसकी बात कर रहे हो कि जो मैं लिखवा रही हूँ ये वाली? मैम ये पीछे दोनों में से पढ़ना वाला कौन सी है? पहले मेरी बात सुनो तुम लोग, ये मैं आप लोगों को तरीका बता रही हूँ। इट्स जस्ट फॉर योर प्रैक्टिस, कीप इट इन योर फेयर कॉपी so that you would be able to understand how to write the diary and what questions will come in your exam. I will give you two options, okay, in the later in this video. So kindly please silent and let me complete this diary entry, okay?
the lightning of the lamp by our chairman of the school Mr. K. Ranganathan who was the chief guest for the event. He encouraged all the children with his powerful and boastful speech. My was the always then we started preparing ourselves doing warm-up practice. Suddenly, change here and schedule that my race will be first. All the participants were thanked listening the news that which
carpet or dust. Waste class, because there is no page for me, so I am going to write at the upside. Okay, I don't feel that you will have any problem if I will erase it. मैम मेरा पूरा रह गया मैम। You don't have to worry, you can write these things on your own. Okay, मैम 2 minutes मैम। first
Okay class. So now this entry has been completed. जब आप अपना पूरा ये एंट्री लिख लोगे, उसके बाद लास्ट में आप लोगों को क्या करना है? You have to write your name also at the last. Okay? Like your name is Anurag. Okay? So I am going to write the name Anurag. So this diary entry has been completed. So I think you must have completed the whole diary entry. Class, have you done the diary entry completely? Class, have you done the diary entry completely? Yes, ma'am. Okay. So class, as we have completed this, I am going to give you two homework. Question B and question C of your book. You have to do in your fair copy. And the two pictures of picture composition, that homework, and question B and C of this chapter. These 4 questions are the homework for your 3 days. On Saturday, I will see these homework. Okay? Thank you.